गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम इंग्लिश रीडर में चैप्टर 11 पढ़ेंगे। ठीक है, बुक के अच्छे से रीड करेंगे, उसके बाद फिर हम मीनिंग समझेंगे। ओके बच्चे, आप सभी नोट्स लिख रहे हैं, लिखने के साथ वर्ड मीनिंग्स याद भी करते रहिए। ठीक है, क्योंकि अभी स्कूल नहीं खुल रही है तो आपको घर में ऐसे ही पड़े रहना नहीं है। आप घर में हैं, घर में ही रहकर अच्छे से पढ़ाई कीजिए। ठीक है, जितने भी हर सब्जेक्ट में आपको जो भी नोट्स लिखाया जा रहा है, आप फ्री टाइम में उसको पढ़ते रहिए, याद करते रहिए। ठीक है, चलिए हम आज कंटिन्यू करते हैं अपना स्टडी। चैप्टर 11 लेफ्ट इन चार्ज। चैप्टर 11 लेफ्ट इन चार्ज। Ma and Bapu had put on their new clothes. They were going to town to sell the vegetables grown in their small field. Bhola was very happy. He was not going with his parents. He was left in charge to take care of Dadi Ma, 80 years old, a calf, a kid, a rabbit, ducks, a hen with chicks, and the small vegetable field. His mother warned him, "Don't forget to feed the cattle and the birds. Keep an eye on the rabbit. It is playing there on the green grass in the vegetable field." His father advised him, "Take care of Dadi Ma. Keep her room warm with charcoal and give her warm milk. Give her medicine on time." आप अपनी बुक सामने रखेंगे, ठीक है, और रीड करते जाएंगे। भोला promised, nodding his head. He reminded them to bring some sweets, color pencils, and a drawing book. Their bullock cart was going through the narrow street of the village. The waving hands of parents were still visible. Bhola helped Dadi Ma to lie down on the cot lying in a corner of the courtyard. He went to the backyard to bring some coal for the angithi to keep Dadi Ma warm, as she was feeling very cold. He saw the calf making sound moo moo. "Oh, you want some grass?" Bhola kept down his bag, picked up a bundle of grass, and ran to the calf. In the corner of the courtyard, he saw the kid jumping and crying, "May, what about me?" आवाज है, ठीक है, ये साउंड। He kept down his bundle of grass and ran outside the house to get some fresh green leaves for the kid. Only then he saw the rabbit in the vegetable field. He forgot to collect leaves for the kid and rushed towards the rabbit. With a stick, he pushed the rabbit back to its place. Coming back to the house, he found the hen with its chicks making noise, "Kut kut kutakku."
He jumped to get some corn in the basket for them. There, in the courtyard, an army of ducks and ducklings was marching, making noise, quack, quack. Bhola kept his basket of corn on the floor. He ran to get some water from the well behind the house and came back with a bucket full of water. He kept the bucket also in the middle of the courtyard, for the ducks, and feeling tired, went to the veranda where Dadima was sleeping in the sun. He rolled down on the floor and went to sleep. A loud barking woke up Dadima. She cried, "Oh my God! What have you done, Bhola?" Bhola sprang on his feet, blinking his eyes. He could see the ducks flapping their wings. They had rolled down the corn on the courtyard floor. The hen and her chicks were feeding themselves outside the house. The goat was chewing some green leaves of vegetable on the vegetable patch. The rabbit was trying to go towards the well. The calf was running and jumping here and there with some grass in its mouth. Suddenly, he heard the jingling bells of the bullock cart coming near the house. He ran to it and jumped into the bullock cart. Clinging to his mother's lap, he murmured, "Oh, what a lot there was to do in the house, Ma." They all went inside the house with the things. The parents noticed that no one was complaining or making noise. Not even the hen and chicks, ducks and duckling, the kid and the calf. Dadima was sleeping in her cot. Bapu patted Bhola's shoulder. "So our little one left in charge. How was the day?" They all smiled slowly. Bhola was happy to see the things that Ma and Bapu had brought for him. ठीक है, अच्छे से एक बार बुक की रीडिंग करें, उसके बाद फिर वीडियो को प्ले करके देखें और समझें। तो चलिए मीनिंग समझते हैं। चैप्टर 11, लेफ्ट इन चार्ज। लेफ्ट इन चार्ज मीन्स जिम्मेदारी संभालना। जिम्मेदारी संभालना। देखते हैं इस चैप्टर में कौन जिम्मेदारी संभाल रहा। माँ एंड बापू हैड पुट ऑन देयर न्यू क्लॉथ्स। माँ एंड बापू पुट पहने हुए हैं, ऑन देयर अपने न्यू क्लॉथ्स नए कपड़े। माँ और बापू ने अपने नए कपड़े पहने। दे वेर गोइंग टू टाउन। दे वेर गोइंग वे जा रहे थे। वेयर मीन्स थे। टू टाउन शहर। टाउन मीन्स शहर। टू सेल बेचने के लिए। द वेजिटेबल्स सब्जियाँ। ग्रॉन उगाई हुई। इन देयर स्मॉल फील्ड अपने स्मॉल छोटे से। फील्ड मीन्स खेत। वे अपने छोटे से खेत में उगाई हुई सब्जियों को बेचने के लिए शहर जा रहे थे। भोला वॉज वेरी हैप्पी। भोला वॉज था। वेरी हैप्पी बहुत खुश। भोला बहुत खुश था। ही वॉज नॉट गोइंग विथ हिज पेरेंट्स। ही वॉज नॉट गोइंग। नॉट गोइंग नहीं जा रहा था। विथ हिज पेरेंट्स। पेरेंट्स मीन्स माता पिता।
वह अपने माता पिता के साथ नहीं जा रहा था। He was left in charge. He was वह था left in charge जिम्मेदारी ले रहा था to take care of दादी माँ। Take care means देखभाल, दादी माँ की देखभाल करने का। 80 years old 80 वर्षीय बूढ़ी दादी माँ। A calf calf means बछड़ा, गाय का बछड़ा, एक बछड़ा। अ किड means बकरी का बच्चा, मेमना, एक मेमना। अ रैबिट एक खरगोश। डक्स बतखें, बहुत सारे बतख। अ hen एक मुर्गी विथ चिक्स और उसके बच्चे। एंड द स्मॉल वेजिटेबल फील्ड और एक छोटा सा सब्जियों का खेत। वह इतने चीज़ों की देखभाल करने की जिम्मेदारी ली। किसने? भोला ने। भोला अपने माता पिता के साथ नहीं जा रहा था। वो अपने 80 वर्षीय दादी माँ, एक बछड़ा, एक मेमना, एक खरगोश और बतखें बहुत सारे, और एक मुर्गी उसके छोटे छोटे बच्चों के साथ, और एक छोटा सा सब्जियों का खेत, ये सारी की देखभाल करने की जिम्मेदारी भोला ने ली। ठीक है, अब देखते हैं आगे उसने अपनी जिम्मेदारी पूरी की या नहीं। His mother warned him. His mother उसकी माँ warned चेतावनी दी, him उसे, उसकी माँ ने उसको चेतावनी दी। Don't forget to feed the cattle and the birds. Don't forget means भूलना, मत भूलना। To feed means खिलाना, खाना खिलाना। The cattle मवेशी, and the birds जानवरों को या मवेशियों को और पक्षियों को खाना खिलाना मत भूलना। Keep an eye on the rabbit. Keep रखना, an eye एक आँख, on the rabbit अपनी एक नज़र खरगोश पर भी रखना। It is playing there on the green grass in the vegetable field. It is playing वह खेल रहा है, there वहाँ, on the green grass means हरे घास, in the vegetable field सब्जियों के खेत में हरे घास पर खरगोश खेल रहा है। तुम अपनी एक नज़र खरगोश पर भी रखना। ठीक है, उसकी माँ उसको चेतावनी दे रही है। His father advised him. His father उसके पिता, advised सलाह दिए, him उसे, उसके पिताजी भी उसको सलाह दिए। Take care of दादी माँ, दादी माँ का ख्याल रखना। Keep her room warm with charcoal and give her warm milk. Keep her room, keep means रखना, her room उनके रूम को, warm गरम, with charcoal means कोयला, उनके कमरे को कोयले से गर्म रखना। And give her warm milk, give means देना और उन्हें गर्म दूध देना। Give her medicine on time, give her medicine उनकी दवाइयाँ उनको समय पर देना। ठीक है, उनके भोला के पिताजी उसको सलाह देते हुए बोलते हैं दादी माँ का ख्याल रखना, उनके रूम को कोयले जलाकर गर्म रखना और उनको गर्म दूध देना और समय पर उनको दवाई भी देना। भोला promised nodding his head and reminded them to bring some sweets, color pencils and a drawing book. भोला promised वादा किया, nodding सिर हिलाना, सिर हिलाते हुए his head अपना सिर, भोला अपना सिर हिलाकर वादा किया, हाँ मैं पूरा काम करूँगा। ठीक है, ऐसा कहकर वो अपना सिर हिलाया। He reminded them, reminded means याद दिलाना, उसने याद दिलाई them उन्हें, उनके माता पिता को वो याद दिलाया। To bring लाने के लिए, some sweets कुछ मिठाइयाँ, color pencil रंगीन पेंसिलें, and a drawing book
ड्राइंग बुक, कला की किताबें। उसने अपने माता पिता को कुछ मिठाइयाँ, कलर पेंसिल और ड्राइंग बुक लाने के लिए याद दिलाया। ठीक है, आप लोग भी जब अपने मम्मी पापा मार्केट जाते हैं तब उनको बोलते हो ना कि हमारे लिए मिठाई और फिर खिलौने, ये सब चीज़ लाने के लिए बोलते हैं। वैसे ही भोला भी अपने माता पिता को बोल रहा कि मेरे लिए कुछ मिठाइयाँ, कलर पेंसिल और एक ड्राइंग बुक लाइएगा। ठीक है, पहले भी बोला था और वो अब भी याद दिला रहा है। आप लोग भी वैसे करते हैं, जब तक मम्मी पापा घर से ना निकल जाएं तब तक उनको याद दिलाते रहते हैं कि हमें ये चाहिए, हमें ये चाहिए, हमारे लिए ये आप लाइएगा। वैसे ही भोला भी कर रहा है। फिर देखो क्या हुआ। देयर बुलक कार्ट was going through the narrow street of the village. Their bullock cart, उनकी बैलगाड़ी, bullock cart means बैलगाड़ी, was going means जा रही, through से, the narrow street, narrow means संकरी, street means गलियों, of the village, गांव की संकरी गलियों के बीच से उनकी बुलक कार्ट, बैलगाड़ी जा रही थी। द वेविंग हैंड्स ऑफ पेरेंट्स वेर स्टिल विजिबल। वेविंग हिलते हुए, हैंड्स हाथ, ऑफ पेरेंट्स माता पिता के हिलते हुए हाथ, वेयर स्टिल अभी तक, विजिबल दिखाई दे रहे थे। विजिबल मीन्स दिखाई देना। उनके हिलते हुए हाथ अभी तक दिखाई दे रहे थे। भोला हेल्प्ड दादी माँ to lie down on the cot, lying in a corner of the courtyard. भोला help means मदद किया। दादी माँ, अपने दादी माँ का क्या करने में, to lie down, लेटने में, on the cot means चारपाई, खटिया जिसको बोलते हैं, lying in a corner means कोने, of the courtyard means आंगन। भोला ने आंगन में एक कोने में दादी माँ को चारपाई पर लिटाने में मदद की। ठीक है, उनकी जो दादी माँ है वो 80 वर्षीय है, मतलब 80 years old, तो बहुत बूढ़ी हैं। उनको चारपाई पर लिटाने में वो मदद किया। फिर क्या किया, he went to the backyard to bring some coal for the अंगीठी to keep दादी माँ warm as she was feeling very cold. Feeling means महसूस करना, very cold means ठंड। He went, वह गया, to the backyard, पीछे के आंगन की ओर, to bring some coal, bring means लाना, some coal कुछ कोयला, for the अंगीठी, अंगीठी के लिए। अंगीठी क्या होता है, जलता हुआ कोयला। ठीक है, जलते हुए कोयले को अंगीठी कहते हैं। ठीक है, टू कीप दादी माँ वार्म, दादी माँ को गर्म रखने के लिए पीछे के आंगन में वो अंगीठी के लिए कुछ कोयले लेने के लिए गया। जब दादी माँ को ठंड महसूस हो रही थी, जैसे ही दादी माँ को ठंड महसूस हुई, वो अपने पीछे की आंगन की ओर दौड़ कर गया, क्या करने, कुछ कोयला लेने के लिए। He saw the calf making sound, mo o o. He saw, उसने देखा, the calf, बछड़ा, एक बछड़ा भी है ना, बछड़ा मेकिंग साउंड, आवाज कर रहा था, मो मो। जब वो कोयला लेने के लिए जा रहा था तब वो देखा कि एक बछड़ा मो मो का आवाज कर रहा। ओह अरे, यू वांट सम ग्रास, यू वांट मीन्स चाहना, ग्रास मीन्स घास, तुमको कुछ घास की जरूरत है, भोला बोल रहा। ठीक है, भोला केप डाउन हिज बैग, भोला केप डाउन नीचे रखा, हिज बैग अपना थैला, जिसमें वो कोयला लेने के लिए जा रहा था, अपना थैला वो नीचे रखा। पिक अप
उठाया अ बंडल ऑफ ग्रास, घास का एक बंडल, एक गट्ठर, घास का एक गट्ठर उठाया एंड रैन टू द काफ, और बछड़े की ओर दौड़ा। ठीक है, जब वो कोयला लेने के लिए जा रहा था तब रास्ते में ही देखा कि गाय का बछड़ा मो मो का आवाज़ कर रहा है। तब वो बोलता है तुम्हें कुछ घास की ज़रूरत है, और ऐसा कहकर वो अपना थैला नीचे रखा और घास का एक गट्ठर उठाया और बछड़े की तरफ दौड़ा। इन द कॉर्नर ऑफ द कोर्टयार्ड, इन द कॉर्नर ऑफ द कोर्टयार्ड, कॉर्नर मीन्स कोना, आंगन के एक कोने में, ही सा उसने देखा, द किड, किड मेमना जो बकरी का बच्चा है, जंपिंग दौड़ रहा, एंड क्राइंग और चिल्ला रहा। वो देखा कि मेमना कूदते हुए और दौड़ते हुए, सॉरी चिल्लाते हुए, कैसे चिल्ला रही, मैं वाट अबाउट मी, ऐसे वो आवाज़ कर रही। और वो जब भोला घास का गट्ठर लेकर जा रहा था तब भी वो देखा। ठीक है, घास का गट्ठर अभी तक गाय के बछड़े के पास नहीं दिया है, और वो देखा कि आंगन के कोने में मेमना आवाज़ करते हुए कूद रही। तब क्या किया वो देखो, he kept down his bundle of grass and ran outside the house to get some fresh green leaves for the kid. He kept down his bundle of grass, kept down नीचे रखा, his bundle of grass अपने घास का गट्ठर जो अपने हाथ में रखा हुआ था उसे वो नीचे रखा, and ran outside और बाहर की ओर दौड़ा, the house घर की बाहर की ओर, to get some fresh green leaves for the kid. green leaves means हरे पत्ते, और कुछ हरे पत्ते, ताज़ा हरे पत्ते लेने के लिए वो घर के बाहर की ओर दौड़ा। किसके लिए हरे पत्ते लेने के लिए? मेमना के लिए। ठीक है, only then he saw the rabbit in the vegetable field. तब उसने देखा the rabbit खरगोश in the vegetable field सब्जियों के खेत में है। जब वो जा रहा था हरे पत्ते लेने तब रास्ते में ही देखा कि खरगोश कहाँ है? सब्जियों के खेत में। He forgot to collect leaves for the kid and rushed towards the rabbit. He forgot वो भूल गया, to collect leaves पत्तियों को इकट्ठा करना वो भूल गया, for the kids मेमना के लिए, and rushed और दौड़ा, towards the rabbit खरगोश की और, towards means की ओर। जब वो पत्ता तोड़ने के लिए जा रहा था तब वो खरगोश को देखता है कि सब्जियों के खेत में है। तब वो पत्ता तोड़ना भूल गया और फिर खरगोश की तरफ दौड़ा। विथ अ स्टिक, स्टिक मीन्स छड़ी, एक छड़ी से ही पुश्ड उसने धक्का दिया, द रैबिट खरगोश को, बैक टू इट्स प्लेस उसने खरगोश को एक छड़ी से धक्का दिया उस जगह से निकलने के लिए। ठीक है, वेजिटेबल फील्ड से बाहर निकलने के लिए। कमिंग बैक टू हाउस घर आते समय, कमिंग आते हुए, बैक वापस, टू द हाउस घर वापस आते हुए, ही फाउंड उसने पाया, द हैन विथ इट्स चिक्स मुर्गी अपने बच्चों के साथ मेकिंग नॉइज शोर कर रही थी, कुट कुट कुटक्कू, और कैसे आवाज़ निकाल रही थी? कुट कुट कुटक्कू करते हुए वो शोर मचा रही थी। ठीक है, यहाँ देखो वो तो अपने दादी माँ के लिए कोयला लेने के लिए गया, और जब कोयला लेने के लिए जा रहा था तब देखा कि बछड़ा मो मो का आवाज़ कर रहा। तब वो उसके लिए कुछ घास लेने के लिए गया, और जब घास का बंडल लेकर आ रहा था तब आंगन के कोने में देखा कि मेमना मे का आवाज़ कर रही। मेमने के लिए जब वो हरे पत्ते लेने के लिए गया तब देखता है खरगोश कहाँ है? सब्जियों के खेत में। उसके बाद वो हरे पत्ते को
लाना भूल गया और खरगोश को भगाने के लिए चला गया। खरगोश को भगाकर जब वो वापस आ रहा था तो देखा कि मुर्गी कुटकुट कुटक्कू का आवाज़ कर रही है, ठीक है, और उसके साथ उसके बच्चे भी हैं, चिक्स, चूजा, ठीक है। अब लेफ्ट इन चार्ज, जिम्मेदारी संभाल रहा है सबकी, और कैसे संभाल रहा है आप देख रहे हैं, ठीक है। आज इतना ही पढ़ेंगे हम, और जब नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे तो इससे आगे बढ़ेंगे। ओके, चैप्टर बहुत ही मज़ेदार है, आप स्टोरी नहीं भूलेंगे, अच्छे से याद रखेंगे, ठीक है बच्चे। आप होमवर्क में एक पेज राइटिंग करेंगे। राइटिंग साफ सुथरी और सुंदर होनी चाहिए। बहुत ही कम बच्चे अभी होमवर्क करके भेजते हैं। सारे बच्चे वीडियो अच्छे से देखिए, समझ में नहीं आता है तो बार बार पूछिए। आप कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। आपको हर बार बोला जा रहा है कि यदि आप नोट्स में पीछे हैं या फिर आपको समझने में परेशानी हो रही है तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। यहाँ देखिए, ए नंबर है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस 1 और 2, ये 2 क्वेश्चन के आंसर आप लिखेंगे। इसमें 1 नंबर है, भोला was not going to town with his parents but he was very happy. Why? भोला अपने माता पिता के साथ शहर नहीं जा रहा था लेकिन वह खुश था, क्यों? उसको आपको आंसर लिखना है, ठीक है। और सेकेंड, भोला was left behind at home to do a lot of work. Make a list of the things he had to do. यहाँ पे उन वस्तुओं, उन चीज़ों का नाम लिखना है, उसका लिस्ट बनाना है जो भोला को जिम्मेदारी के रूप में दिया गया था, ठीक है। उसको घर में, भोला वॉज लेफ्ट बिहाइंड एट होम टू डू अ लॉट ऑफ वर्क, भोला को घर में रहकर कार्य करने के लिए छोड़ा गया था और उसे बहुत सारे कार्य दिए गए थे। मेक अ लिस्ट ऑफ द थिंग्स ही हैड टू डू, आप उन कार्यों की सूची बनाइए, ठीक है। ये बन जाएगा आपसे। अभी हम पढ़े हैं सिर्फ वहीं तक आपको आंसर मिलेगा। ओके, आप पढ़ेंगे, समझेंगे और क्वेश्चन की आंसर अपने से बनाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। आज का क्लास यहीं समाप्त करते हैं। ओके बच्चे, बाय।